No doubts? Okay, so before we start day 3, let me just recap what we did on day 2. So in the first session, we had a discussion on what is SEM and what are the different types of variable we study in SEM. So we have latent variable, observed variable, residual variable, exogenous, endogenous, and we also discussed the different characteristics of SEM, why SEM is important, how SEM is important, the role of theory. We also discussed a theory called as TAM model. Uh, and we also talked about what we draw is what we get. That is the whole idea behind SEM. And anything which you will like to explore cannot be explored on SEM. It is a confirmatory kind of analysis. And in the second half, we discussed about the software. We tried to get familiar with the software. We discussed the toolbox, the different types of tools available on the toolbox of MOS, and how we can draw a model. We, as we discussed in the first session of TAM, we draw the same model on the SEM also. And in today's session, we are going to start with the CFA part, the confirmatory factor analysis part. And we'll try to understand the difference between EFA and CFA first. And then we'll run a complete CFA. हम एक पूरा CFA का मॉडल रन करके देखेंगे और हम थोड़ा सा ये भी बात करेंगे दैट हाउ सेम का होल प्रोसेस कैसे काम करता है, what are the different values which we need to check, what are the standardized values for those coefficients, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. दैट वुड बी, मतलब कोशिश रहेगी कि फर्स्ट सेशन में अगर हम इतना कर लेते हैं तो फिर सेकेंड सेशन में हम एक पूरा मॉडल रन करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो मैं आपको फाइल ग्रुप में डाल रहा हूँ. पहले तो आप फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लो. So I've sent you the file on the group. This is an SPSS file. Excuse me, sir. Yeah. It's not as a doubt as such, but yesterday when I was running the TAM model, I was trying to draw it. I was facing a problem in the software, which is the photos. The diagram is coming out to be very enlarged. I don't know. It's not even resize करके जैसे अब मैं duplicate भी करना चाह रही हूँ, वो इतना पेज एकदम भर रहा है कि तो duplicate आपने नहीं हो जूम कर दिया होगा. अब नहीं जूम. सर, मैंने zoom in and zoom out ट्राई करा है, उस वो वैसे ही आ रहा है without it. ओके. Is there any other possibility? Because ऐसे duplicate मतलब बन ही नहीं पा रहा मेरा मॉडल पूरा on the page. पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है. मैं आपके सामने ही, मैंने भी सारा मॉडल रन हाँ, किया. मैं सर तभी पूछ रही हूँ कि मे बी कोई मैंने शायद ऑप्शन मैंने से कोई क्लिक तो नहीं किया है. स्टार्टेड विद द टूल बॉक्स फर्स्ट जैसे हम डिस्कस कर रहे थे. आई थॉट मे बी इट्स सम सेटिंग प्रॉब्लम दैट आई शुड आस्क आप यू. उसको फिट टू पेज कर देते. सो फिट टू पेज कर रही हूँ, पर उसके बाद सेकंड वाला फिर भी नहीं आ रहा है ऐसे एडजस्ट करके, क्योंकि उसके बाद जब आगे मॉडल हम बना रहे थे वो नहीं फिट हो रहे. फिट टू पेज मैंने हर स्टेप पे कर रही थी, पर फिट टू पेज क्योंकि फर्स्ट डायग्राम ही बहुत बड़ी आ रही है, तो जब मैं फिट टू पेज कर रही हूँ तो वो पूरा पेज ही यूटिलाइज कर जाती है वो डायग्राम. एंड अगर मैं रीसाइज करके भी देख रही हूँ तब भी वो पूरा नहीं आ रहा. चलो, And विल लुक इनटू इट. हम देख लेंगे आपके साथ हाँ जी एक सर, बारी में क्या इशू आ रहा है. हाँ जी सर, थैंक यू.
ओके, सो लेट्स बिगिन द डिफरेंस. पहले थोड़ा डिफरेंस डिस्कस करते हैं. हमने ऑलरेडी ईएफए के बारे में तो बात किया था. हमने बात किया था कि कैसे वो वेरिएबल्स को फैक्टर में कन्वर्ट कर देता है ऑन द डे वन. आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि देयर इज अनदर एनालिसिस, अनदर लेवल ऑफ एनालिसिस व्हिच इज कॉल्ड एज दिस CFA, that is called confirmatory factor analysis. So we'll be discussing the differences between EFA versus CFA. I'm just sharing my screen and then we'll start. Are you able to see my screen? देख पा रहे हैं आप? Yes, sir. Okay. So there are three things: EFA, CFA and CCA. CCA इस वर्कशॉप के प्रीव्यू में नहीं है, तो CCA में फिर भी आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली होता क्या है. बट जनरली हम इस वर्कशॉप में CCA कवर नहीं कर रहे. So our focus will be more on EFA versus CFA. So let's begin with the first difference, and that is the focus. कि EFA का फोकस क्या है और कंफर्मेटरी का फोकस क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा. दोनों जगह कहीं ना कहीं द ऑब्जेक्टिव रिमेन्स द सेम. दैट मीन्स वहां भी हम वेरिएबल टू फैक्टर बना रहे हैं बेस्ड ऑन कॉमन वेरिएंस. यहां भी कॉमन वेरिएंस ही यूज होता है. कॉमन वेरिएंस क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि किस तरह से वो इंटर कोरिलेशंस निकलते हैं, और उस हिसाब से जो भी वेरिएबल्स के बीच में एक इंटर कोरिलेशन हाई होता है वो एक फैक्टर को फॉर्म कर लेता है. ईएफए में जो मेथड हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड पीसीए मेथड. बट इसके अलावा और भी वहां पर काफी सारे मेथड्स होते हैं जिनको यूज किया जा सकता है. पीसीए मेथड जो है वो टोटल वेरिएंस के ऊपर बेस्ड होता है, बट इसके अलावा मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड भी वहां पर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग मेथड भी वहां पर होता है. तो ऐसे काफी सारे मेथड्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप फैक्टर एनालिसिस को यूज कर सकते हो. बट द होल ऑब्जेक्टिव रिमेन्स द सेम. पर्पस अगर आप देखो तो उसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, तो यहां पर एक्सप्लोरेटरी होता है, जैसा मैंने आपको बताया भी था दैट द आइडिया ऑफ ईएफए इज टू एक्सप्लोर. हम वहां पर प्रायरली नहीं जानते होते कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर गोइंग टू फॉर्म. दैट इज नॉट क्लियर. वो हमें पता नहीं होता. वो जैसे जैसे हम एनालिसिस को लगाते जाते हैं वैसे वैसे हमें पता चलता है कि कितने फैक्टर्स बन रहे हैं. बट ऐसा सीएफए के साथ नहीं होता. जब भी हम सीएफए लगाते हैं हमें पहले से ही पता होता है कि हाउ मेनी फैक्टर्स वी हैव. वो क्लियर होता है. हम सिर्फ उसको कंफर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस. तो ईएफए से जो निकलेगा, अगर एक सिंपल सा लॉजिक समझे, तो वॉट एवर वी गेट फ्रॉम ईएफए gets confirmed through CFA. So it is more like a confirmation tool. और ऑब्वियस ही बात है कि कंफर्मेशन कर रहा है मतलब क्रॉस चेक कर रहा है ना. एक तरह से कंफर्मेशन क्या होता है? क्रॉस चेक करना किसी चीज को, कि आपने कोई काम करके दिया, अब मैं उसको क्रॉस चेक करके कंफर्म करूंगा कि वो सही है या नहीं है. तो जब भी कोई चीज क्रॉस चेक होती है वो अक्सर रिजिड होती है. रिजिड इन द सेंस वो अक्सर उसके जो रूल्स होते हैं, जो उसके पैरामीटर्स होते हैं, वो थोड़े टाइटर होते हैं. एंड दैट इज व्हाई आप देखोगे कि कोई फैक्टर हो सकता है कि ईएफए में आ रहा है लेकिन सीएफए में नहीं आ रहा. ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जो अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया, इज दिस पॉइंट इज क्लियर? हाँ जी. यस सर. इन ए नटशेल सिंपल याद रखिए, नाम ही काफी है जो बता देता है. एक्सप्लोरेटरी मींस एक्सप्लोरिंग ऑफ फैक्टर्स, कंफर्मेटरी मींस कंफर्मिंग ऑफ फैक्टर. और हमें ये बात समझनी पड़ेगी, सिंस यू आर कंफर्मिंग समथिंग, तो कंफर्मिंग हमेशा टाइटर पैरामीटर्स के ऊपर होता है. तो जब भी आप टाइटर पैरामीटर्स की बात करते हो तो वहां पर क्या होगा, there can be possibility that something which is significant in exploratory factor analysis might not be significant in CFA. अगर हम CCA की बात करें तो वो दोनों काम कर लेता है. वो एक्सप्लोरेटरी भी रन कर लेता है, कंफर्मेटरी भी रन कर लेता है. ये दोनों चीजें आप CCA में कर सकते हैं. मूविंग ऑन.
हैंडल यहाँ पर कैसे हम हैंडल करते हैं आईवी और डीवी को, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कैसे हैंडल करते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस के केस में हम आईवी और डीवी को सेपरेटली कहीं ना कहीं एनालाइज करते हैं। सेपरेटली इन द सेंस कि आईवी को भी हम एक्सप्लोरेटरी का पार्ट बनाते हैं, डीवी को भी पार्ट बनाते हैं, बट हमें कहीं ना कहीं पता होता है, मतलब वो एक साथ रन नहीं हो रहे होते, वो इंडिपेंडेंटली रन हो रहे होते हैं, सेपरेटली रन हो रहे होते हैं। जो हमने वहां पर भी याद करो, आप 7 वेरिएबल से 2 फैक्टर्स बनाए थे, वहां पर हमने कोई इस तरह का सेग्रीगेशन क्रिएट नहीं किया था कि कौन सा डीवी है कौन सा आईवी है, ऐसा कुछ सेग्रीगेशन नहीं था। लेकिन सीएफए में क्या होता है, ये एक साथ रन होता है और इसमें क्लियरली हम कहीं ना कहीं सेग्रीगेट करते हैं कि कौन सा वेरिएबल हमारा डीवी है और कौन सा आईवी है। आपको याद करो कल भी जो हमने मॉडल बनाया था, जो लास्ट में हमने कल मॉडल बनाया है, वहां पर मैं लास्ट में बता दिया था कौन सा वेरिएबल लेटेंट है, कौन सा ऑब्जर्व्ड है, कितने ऑब्जर्व्ड हैं, कितने रेसिडुअल हैं। वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट एक्सोजीनियस कौन सा है, एंडोजीनियस कौन सा है। तो कहीं ना कहीं जैसे ही वो मॉडल बनता जाता है, वैसे वैसे हमें क्लैरिटी मिलती जाती है कि कितने डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और उनको इकट्ठे रन करते हैं, साइमल्टेनियसली रन होता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमने पर्पस के बारे में भी जस्ट बात किया था। तो ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ, मतलब कहते हैं ना जो वर्ड हम यूज करते हैं, सो फॉर ईएफए मैंने आपको बताया था पर्पस इज डाटा रिडक्शन। तो वहां पर हम डाटा को रिड्यूस करते हैं, यहां पर हम अपने मेजरमेंट मॉडल्स को कंफर्म करते हैं। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझने की कोशिश करें, तो अगर आप स्ट्रेस को मेजर करने के लिए 5 स्टेटमेंट ले रहे हो और आप उसको पहले ईएफए में रन करते हो, आप चेक करते हो कि वो सभी सही है या नहीं है। अगर वो वहां से क्लियर हो जाता है तो आप उसके बाद आप कंफर्म लगा के देखोगे, आप चेक करोगे कि क्या यहां से भी क्लियर हो रहा है या फिर कोई ऐसा भी स्टेटमेंट है जो यहां क्लियर हो गया लेकिन यहां क्लियर नहीं हो रहा। और इसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई है, ये मैं आपको बता दूं। ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई चीज ईएफए में अच्छा आ रहा है, सिग्निफिकेंट आ रहा है, बट जब भी आप उसको सीएफए की तरफ मूव कर रहे हो तो आप उसके रिजल्ट्स को और पुअर होता हुआ देख रहे हो। और वो उसका रिजिडिटी नेचर है, जैसा मैंने आपको जस्ट बताया था, कंफर्मेशन है तो थोड़ा रिजिड रहेगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज कोरिलेशन अमंग फैक्टर्स। तो हमने पहले भी बहुत बार बात की है कि फैक्टर्स हम हमेशा ईएफए में इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। तो जितने भी फैक्टर्स हमारे पास होते हैं हम सभी को अनकोरिलेटेड फैक्टर्स की तरह देखते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम सीएफए की बात करें तो वहां पर कोरिलेटेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कोरिलेटेड कंस्ट्रक्ट्स भी हो सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स में कोई डाउट? क्लियर है? Sir, can you please turn to the last slide for a second? हाँ जी। सर ये मेजरमेंट कंफर्मेशन एंड मेजरमेंट मॉडल्स आप इलैबोरेट करेंगे थोड़ी देर में? ये आज पूरा करेंगे मैम। ये मेजरमेंट मॉडल ठीक है। होता क्या है, कैसे रन करता है, आज हम पूरा करके दिखाऊंगा मैं आपको। जी जी थैंक यू। Thank you, sir. ये पॉइंट्स में क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिविटी क्या है और हम फैक्टर्स को कैसे देखते हैं यहाँ पर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू सम मोर डिफरेंसेस। तो रिलायबिलिटी का मेजर, रिलायबिलिटी एनालिसिस जब भी हम करेंगे इन द केस ऑफ ईएफए वी गो विथ क्रोनबैक अल्फा। ऑलरेडी आप में से काफी लोगों ने इसको पढ़ा ही होगा क्रोनबैक अल्फा। क्रोनबैक ने 1951 में ये एक अपना एक स्केल ये दिया था, ये टूल दिया था जो आपके आइटम्स की कंसिस्टेंसी बताता है कि आपकी आइटम्स की कंसिस्टेंसी कैसी है, और ये एवरेज कोरिलेशन को देखता है। आप मुझे बता सकते हैं क्रोनबैक अल्फा की सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसका कंसर्न क्या है? अगर आपने इसको पढ़ा है तो क्रोनबैक अल्फा अगर मान लो लो आ रहा है, लेट अस सपोज क्रोनबैक अल्फा कम आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें एक फंडामेंटल इशू है जिससे कि वो काम ठीक हो जाता है।
Sir, I guess collecting more data by increasing the sample maybe. नो, सैंपल बढ़ाने से रिलायबिलिटी नहीं बढ़ती, Okay. बट आप उसके आसपास हो। और क्या बढ़ाया जा सकता है, आप खुद सोचो। सैंपल अगर हम नहीं बढ़ा सकते तो और क्या बढ़ा सकते हो आप? सर सैंपल होमोजेनिटी, नो। नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, वेरी गुड। मैंने आपको क्या बताया कि दिस इज बेस्ड ऑन एवरेज कोरिलेशन। तो आप नंबर ऑफ आइटम्स को अगर बढ़ा देते हो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आइटम्स से ये डिवाइड होता है, तो इसका जो फॉर्मूला है आप उसको अगर देखोगे उसमें क्लियरली ये समझ में आता है कि अगर नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ते हैं तो क्रोनबैक बढ़ने लगेगा। बट आप मुझे बताओ, अगर क्रोनबैक को आप ऐसे बढ़ाओगे तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी? या फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, भाई नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ा दो और क्रोनबैक ठीक हो जाएगा। क्या इश्यू आ सकता है अगर क्रोनबैक को आप बढ़ा दोगे तो? फिर क्रॉनबैक को बढ़ा देंगे या नंबर ऑफ आइटम्स को बढ़ाएंगे? मतलब नंबर ऑफ आइटम्स को बढ़ाओगे तो क्रोनबैक बढ़ने लगेगा ना, दैट इज व्हाट जी जी, द हाँ होल जी, आइडिया इज। मान लो आपका क्रोनबैक कम आ रहा था, लेट अस सपोज आपकी वैल्यू आ रही थी 0.5, अब हाँ आप जी, चाहते थे कि नहीं मेरी 0.75 आए, तो उसको राइट, बढ़ाने के लिए आपने नंबर ऑफ आइटम्स को बढ़ा दिया। हम्म। अब नंबर ऑफ आइटम्स तो बढ़ गए, अब आप मुझे बताओ कि इसका ड्रॉबैक क्या होगा? अगर आपने बढ़ा दिया तो अब क्या प्रॉब्लम आएगी? सर पहले तो ये जरूर नंबर ऑफ आइटम्स या जो न्यू आइटम्स आप ऐड करोगे उनकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होनी चाहिए लाइक द प्रीवियस वंस। वो तो पहले कर तो ये देते हैं लोग, प्रॉब्लम आ सकती है। कोई सिमिलर से स्टेटमेंट्स बना देते हैं, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, वो कर लेते हैं लोग। स्टैटिस्टिकली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं अगर हम ऐसा कर रहे हैं। एक्चुअली होता यही इशू है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये काफी सारे लोग क्या करते एरर हैं, जब वेरिएंस की रिलायबिलिटी एरर वेरिएंस रिलायबिलिटी उनकी जब नहीं आती ना, तो वो जुगाड़ ढूंढने निकल पड़ते हैं कि यार रिलायबिलिटी तो आ नहीं रही, अब क्या करें। फिर कोई उनको मेरे जैसा स्टैटिस्टिशियन मिल जाता है जो उनको आइडिया दे देता है, दिमाग दे देता है, यार रिलायबिलिटी नहीं आ रही ना, कोई बात नहीं, स्टेटमेंट्स बढ़ा लो। तो वो पहले अगर उन्होंने 3 बनाए होते हैं तो बढ़ाकर 5 कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। उससे क्या होता है, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। बट जैसे ही रिलायबिलिटी बढ़ती है ना, वैलिडिटी मारी जाती है। जो आपकी कन्वर्जेंस वैलिडिटी है और जो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है, दोनों के रिजल्ट्स पुअर हो जाते हैं। एंड दैट इज द रीजन वाई ये जो आइडियाज हैं, ये जो इस तरह के हम कहते हैं ना शॉर्टकट्स हैं, वो काफी डबल सोर्ड होती हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जैसे ही आप एक चीज को बढ़ाओगे, ये वाइस वर्सा भी होता है। जब आप वैलिडिटी को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो रिलायबिलिटी विल आल्सो टेक एन हिट, और दोनों का बैलेंस बनाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। पता नहीं इन दोनों भाइयों के आपस में बनती नहीं है, ऐसा लगता है मुझे कई बारी। ओके, अगर आप सीएफए को लगा रहे हो तो वहां पर आप कंपोजिट रिलायबिलिटी देखते हो। कंपोजिट रिलायबिलिटी मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, और साथ में मैं आपको ना एक शीट दे दूंगा। आप उस शीट को यूज करोगे तो कंपोजिट रिलायबिलिटी आप ऑटोमेटिकली निकल जाएगा उसमें। मैं अपना एक मास्टर शीट मैंने बना रखा है, तो वो मैं आपको दे दूंगा। कल की क्लास में कर लेंगे कंपोजिट रिलायबिलिटी वाला टॉपिक। ओके, मूविंग ऑन टू वैलिडिटी पार्ट। तो ईएफए में हम मोस्टली फेस वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है, और उसका रीजन आपको क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा। आपको याद है हमने जब क्वेश्चन पिक किया था तो x2 और x7 वेरिएबल सेम था, याद आया? क्वालिटी वाला हाँ, आइटम। क्वालिटी वाला वेरिएबल सेम था, याद आया ना? अब वो जो इशू था वो हमें स्टेटमेंट को पढ़कर ही पता चल गया था कि वहां पर प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो इसी वजह से वहां पर हम फेस वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि जब भी आप स्टेटमेंट्स को रीड कर रहे हो, आप इस चीज को एंश्योर करो कि हर स्टेटमेंट एक वेरिएबल को मेजर कर रहा है और वो वेरिएबल यूनिक है। ऐसा नहीं है कि वो वेरिएबल ऑलरेडी आपने लिया हुआ है, या वो स्टेटमेंट देखकर ऐसा लग रहा है दैट ऑलरेडी उससे सिमिलर स्टेटमेंट्स लिए हुए हैं आपके सर्वे में। सो द होल फोकस इज ऑन द फेस एंड कंटेंट वैलिडिटी। क्योंकि ईएफए अगर अच्छा बनना है, अगर फैक्टर स्ट्रक्चर को अच्छा बनना है, हर वेरिएबल को इंक्लूड होना है, तो आपके जो स्टेटमेंट्स होनी चाहिए वो
बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से डिफरेंट है। ओके, कन्वर्जेंट वैलिडिटी आप यहां पे देख सकते हो। कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या होती है? हाँ जी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी The two similar things should be correlating. जो measurements हैं वो that's what I remember offhand. नहीं, पूरा Sir, तो सही बात। it is where an external criterion and the test which you have formulated, they measure the same construct. The हाँ, correlation. मतलब वो कन्वर्ज हो रहे हैं। कन्वर्ज का आप देखो ना, वर्ड में क्या है, कन्वर्ज है। कन्वर्ज का मतलब क्या है कि मान लो आपने 5 स्टेटमेंट्स लिए हैं टू मेजर समथिंग, मान लो 3 ही लिए हैं, तो वो तीनों वेरिएबल का जो कन्वर्जेंस है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, टुवर्ड्स दैट कंस्ट्रक्ट, लेटेंट कंस्ट्रक्ट, सॉरी। तो यहां पर हम बेसिकली कन्वर्जेंस को मेजर करते हैं। कन्वर्जेंस का मतलब है आर दे लोडिंग ऑन द सेम फैक्टर और नॉट, सिंपल। अगर सेम फैक्टर पे लोडिंग आ जा रही है तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल कन्वर्जेंस है, कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टेकन three items for measuring attitude and all the 3 items are loading on the same factor, तो आई कैन से दैट कन्वर्जेंस का कोई इशू नहीं है, कन्वर्जेंस हमें मिल रहा है। ऑन द अदर साइड डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट ये है कि जो एक वेरिएबल के आइटम्स है वो दूसरे वेरिएबल पे लोड नहीं हो रहे, दे आर नॉट गेटिंग डिस्क्रिमिनेटेड। तो मोर एंड ओवर वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वर्ड्स हैं। कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट अगर देखा जाए, कन्वर्जेंट मींस क्या सभी एक पे लोड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, डिस्क्रिमिनेंट मींस क्या कोई ऐसा तो नहीं जो दूसरे पे लोड हो जा रहा है। तो ईएफए में हमें डिस्क्रिमिनेंट नहीं मिलता, लेकिन यहां पे मिल जाता है, कंफर्मेटरी में मिल जाता है विद द बेस्ड ऑफ एवी स्कोर्स। इज ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर ओवर हियर? सारे पॉइंट समझ में आ गए? कोई डाउट है इसमें? Yes, sir, it's clear. ओके ओके, अब यहां पर हम स्कोर्स में क्या करते हैं, तो मोस्टली जो फैक्टर स्कोर्स हम निकालते हैं फ्रॉम ईएफए, इट इज यूज्ड फॉर मल्टीपल रिग्रेशन। आप इसके फैक्टर स्कोर्स को निकालकर मल्टीपल रिग्रेशन में यूज कर सकते हो, क्लस्टर एनालिसिस में यूज कर सकते हो, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन आल्सो यूज ऑन डिस्क्रिमिनेंट स्कोर। तो इन जगहों पर ये इस्तेमाल किया जा सकता है जो फैक्टर स्कोर बनता है। और जो हमारे सीएफए का जो रिजल्ट आता है उसको हम फाइनली स्ट्रक्चर मॉडलिंग के लिए यूज करते हैं। अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं जो फैक्टर के स्कोर्स होते हैं वो इंटर डिटरमिनेंट होते हैं। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको भी समझाता हूँ। वैसे तो ये हम करेंगे तब भी आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि होता क्या है। दोनों ही सिचुएशन में जो Excuse me, फैक्टर, sir. हाँ जी, Your voice is breaking a lot. माय वॉइस इज ब्रेकिंग अ लॉट। क्या बाकी लोग भी सेम इशू फेस कर रहे हैं? No, No, sir. sir, it's fine. No, sir, it's fine. मेरे Ma'am, हिसाब से kindly क्या आप, check the network at your end, ma'am. Sir, Amit sir, it's fine. ओके ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फैक्टर स्कोर्स, अब फैक्टर स्कोर पहले होता क्या आप ये समझ लो। आप देखो, आपने किसी एक रिस्पोंडेंट के डिफरेंट स्कोर को लिया होगा, ठीक है ना, उसने आपके डिफरेंट आइटम्स पर अपना रिस्पॉन्स दिया होगा। तो जब आप इन सारे रिस्पॉन्सेस का समरी क्रिएट करते हो तो फिर एक फैक्टर स्कोर निकल कर आता है। और उस फैक्टर स्कोर को आप आगे फर्दर यूज कर सकते हो। आप चाहो तो मैंने आपको जस्ट बताया कि फैक्टर स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस, लाइक मल्टीपल रिग्रेशन में आप उसको यूज कर सकते हो, आप उसको क्लस्टरिंग में यूज कर सकते हो, आप उसको डिस्क्रिमिनेंट में यूज कर सकते हो। और जो सीएफए के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो वहां पे जो हमारे फैक्टर स्कोर्स निकल कर आते हैं उसको हम फाइनली स्ट्रक्चर मॉडलिंग में यूज कर लेते हैं। जो मॉडल हमारे बनते हैं, फाइनल मॉडल जो बनता है, वहां पर हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। सो एनी डाउट इन दिस पार्ट? वी आर डन विद ईएफए एंड सीएफए का जो डिफरेंस होता है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं इसको बिल्कुल समराइज करूं, और मतलब थ्योरेटिकल बातें तो अपनी जगह पर हैं कि क्या क्या डिफरेंस है, ब्रॉडर डिफरेंसेस क्या है, बट अगर मैं एक 2 लाइन डिफरेंस आपको बताना चाहूं तो सिंपल है, ईएफए इज ओनली फॉर एक्सप्लोरेशन। सिंपल। आप वहां पर फैक्टर्स को एक्सप्लोर करते हो, आपको प्रायरली नहीं पता होते दैट हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर। ऑन द अदर सिचुएशन, इन द केस ऑफ सीएफए, वहां पर में पहले से ही क्लैरिटी होती है दैट हाउ मेनी फैक्टर्स आर गोइंग टू फॉर्म, और उसी हिसाब से हम सीएफए को रन करते हैं। तो इट इज मेनली फोकसिंग ऑन कंफर्मेशन ऑफ फैक्टर्स। तो ईएफए इज एक्सप्लोरेशन एंड सीएफए इज कंफर्मेशन। और मैंने एक पॉइंट आपको पहले भी बताया था, जो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कंफर्मेशन इज अ रिजिड टेक्निक, इट्स अ टफर टेक्निक, because it's more like confirmation, so it will double cross check everything. So in that situation, something which is significant on EFA may not be significant on CFA. If you have any further doubt on this, please ask. सर एक बार फैक्टर स्कोर्स समझा दीजिए, आप लास्ट स्लाइड में समझा रहे थे। Factor score ना, it's a summary or cumulative score of a particular respondent. मान लो आपने 5 आइटम्स पे रिस्पॉन्स किया, किसी पे 3 दिया, किसी पे 4 दिया, किसी पे 5 दिया, तो जब आप फैक्टर स्कोर को निकालते हो तो वो उस पांचों रिस्पॉन्सेस का एक एवरेज स्कोर या एक क्यूमुलेटिव स्कोर बना देता है, एंड दैट इज कॉल्ड फैक्टर स्कोर। ओके सर, थैंक यू। सर एक बार स्लाइड भी पीछे कर देंगे प्लीज। आप स्लाइड को बेकार अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट करो, या आप मुझसे वैसे ले लेना। रीड करना चाह रही थी उसको फिर से। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अगर वैसे मैं बाकी लोगों को भी कह रहा हूँ, अगर आप जी। इसको नोट डाउन कर रहे हो तो आप, कोई फायदा नहीं है, आप मेरे से वैसे ही ले लेना, कोई ऐसी बात नहीं। तो मैं इन चीजों के बारे में इतना फसी नहीं होता हूँ अबाउट माई स्लाइड्स एंड ऑल, बिकॉज किसी ने भी बनाया है, मान लो मैंने भी बनाया है, तो मैंने भी कहीं ना कहीं से पिक ही किया है। हाँ जी, कोई डाउट है? समझ में आ गया ईएफए सीएफए का डिफरेंस क्या है? क्योंकि अब हम सीएफए करने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ। क्लियर सर। ओके, तो एक बारी के लिए, बिफोर वी गेट इनटू द सीएफए पार्ट, मैं एक बार उस मॉडल को रिवाइज कर देता हूं जो मॉडल हमने कल बनाया था। द मॉडल वाज कॉल्ड एज टैम मॉडल, जहां पर मैंने आपसे कहा था देयर इज वन कंस्ट्रक्ट कॉल्ड एज PEOU, देयर इज अनदर कंस्ट्रक्ट दैट इज कॉल्ड PU। इसको मेजर करने के लिए वी हैव 4 आइटम्स, इसको भी मेजर करने के लिए वी हैव 4 आइटम्स, यहां पर भी 4 आइटम्स है। दिस इज द सेम मॉडल विच वी ड्रॉन यस्टरडे। इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा है? एटीट्यूड। और इससे क्या बन रहा है? बिहेवियरल इंटेंशन। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास 3 आइटम्स हैं, और इसको भी मेजर करने के लिए हमारे पास 3 आइटम्स हैं। दिस वाज द मॉडल दैट इज कॉल्ड टैम मॉडल। अब हम इसी मॉडल को की तरफ बढ़ेंगे, बट बिफोर डूइंग दैट वी नीड टू गो टू दैट फाइल जो मैंने आपके साथ अभी टैम की एक फाइल शेयर की है। हम उस फाइल में जाएंगे और हम देखेंगे कि पहले हमें क्या करना होता है। बिफोर वी गेट इनटू द सीएफए पार्ट, हमें उससे पहले कुछ और चीजें भी चेक करनी होती हैं, तो उन चीजों के बारे में चेक करेंगे। करें शुरू?
सर वो टैम वाली फाइल खुल नहीं रही है। कौन सी टाइम वाली फाइल? जो अभी मैंने आपको भेजी, हाँ जी वो स्पेसेस में खुलेगी? सर, मैंने मेल करने की कोशिश करी अपने आप को ग्रुप से, वो जा हाँ। ही नहीं रही। आई डोंट नो, क्यों? आई डोंट नो सर। बाकी लोगों को भी सेम इशू आ रहा है? क्या ईमेल आईडी है आपकी? चैट बॉक्स में लिख रही हूँ सर। अब चैट बॉक्स में लिखो, मैं देख लेता हूँ। Sir, the SPSS file is opening. ओपनिंग ना? मैंने कहा इतना Yes, कोई इसमें, अभी तो मैंने फाइल ओपन की है। स्टिल अगर किसी को इशू आ रहा है तो मैं, इसमें क्या है, रहमत की आईडी तो मेरे पास पहले से है आई गेस। रहमत, मैंने आपको मेल कर दिया है। ओके, सो लेट्स गो डाउन टू दैट फाइल। थोड़ा ध्यान से समझेंगे बिकॉज वी आर गेटिंग इनटू द प्रैक्टिकल पार्ट नाउ। So let me just open that file. Excuse me, sir. So the file is not opening even at my end. So can you please mail the same to me? आप उधर ही अपनी ईमेल आईडी मैम लिख दो। Yes, sir. I've already dropped my email ID in chat box. Okay. Okay, let me just open this. I mailed you, ma'am. ढूंढनी पड़ेगी। Okay, this is the file. Okay, so this is the file. आप यहाँ पे देख सकते हैं that all the items has been measured on a Likert scale of 1 to 5 और टोटल जो रिस्पॉन्सेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं दैट इज 245 रिस्पॉन्सेज। ठीक है, और अगर आप वेरिएबल की कोडिंग देखो तो वहीं से आपको आइडिया लग जाता है द फर्स्ट 4 आइटम्स बिलोंग्स टू PEOU, दैट इज परसीव्ड ईज ऑफ यूज। द नेक्स्ट 3 इज बिहेवियरल इंटेंशन, दैट इज कॉल्ड BI। द नेक्स्ट 3 इज कॉल्ड एटीट्यूड एंड द नेक्स्ट 4 इज PU, दैट इज परसीव्ड यूजफुलनेस। इज द फाइल इज क्लियर? फाइल तो बिल्कुल मॉडल के हिसाब से है, जो हमने मॉडल बनाया है हमने उसी को मेजर करके उसका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड कर लिया है। क्लियर है? Yes, sir. फाइल में अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछें। फाइल क्लियर है? फाइल में क्लियर है? Yes, sir, it's clear. सॉरी। ओके, सबसे पहले ना आप इसमें एक फ्रीक्वेंसी एनालिसिस रन करो। मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं बिफोर वी गेट इनटू द CFA एंड द एमओएस पार्ट। आपको डाटा क्लीनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। द फाइल नीड्स टू बी क्लीन्ड। आपकी फाइल अच्छी खासी क्लीनिंग फाइल पर होनी चाहिए ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि आपकी फाइल में कोई इशू नहीं है।
I'll go to this descriptive statistics and go to frequencies. और मैं एक बार इन सभी वेरिएबल्स का ना फ्रीक्वेंसी देखना चाहूंगा. I'll just check the frequencies. And okay. ये जो फर्स्ट टेबल है ना, यही देखना है मुझे एक्चुअली. यहाँ पे देखो मिसिंग की वैल्यूज आ रही हैं, दिख रही है ना आपको हर फाइल के नीचे कि टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज कितने हैं और मिसिंग कितने हैं. तो यहाँ पर आप देखो हर जगह 0000 आ रहा है. दिख रहा है आपको? यस सर. ये हमारा पहली चीज है जो हमें चेक करनी है, क्योंकि मिसिंग वैल्यू अगर होगा, एक भी होगा, तो रन नहीं करेगा. मैं यहाँ पे आपके लिए थोड़ा चेंजेस करके भी दिखा देता हूं. मान लो कि मैंने PU से एक वैल्यू हटा दी और एक वैल्यू ये PU2 से हटा दी, 4 और 1 हटाया हमने, ठीक है. नाउ रन अगेन. नाउ इट विल शो सम मिसिंग वैल्यूज. अब अगर मिसिंग वैल्यू आएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा. अब आप यहाँ देखो मिसिंग वैल्यू आ रहा है ना, 1 आ रहा है. तो अगर पूरे फाइल में कहीं भी मिसिंग वैल्यू है और आप बिना मिसिंग वैल्यूज को ट्रीट किए उस पर CFA रन करने की कोशिश करेंगे, मॉडल रन नहीं करेगा. और ये मैं आपको इसका प्रैक्टिकल डेमो भी दिखा दूंगा बाद में. तो अभी के लिए जो फर्स्ट काम हमें करना है, दैट इज योर चेकिंग फॉर मिसिंग एनालिसिस. मिसिंग वैल्यूज कहाँ है वो देखनी है हमें. ओके. अब जो नेक्स्ट चीज करनी है, जैसा कि ऑलरेडी अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर कितने फैक्टर्स दिख रहे हैं बेस्ड ऑन द फाइल. हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? How many factors are there? 4 factors, sir. 4 factors. First factor is your perceived ease of use, another is perceived usefulness, third is attitude, fourth is behavioral intention. तो अगर देखा जाए तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. We should directly go into the CFA part. क्योंकि हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि भाई जब हमें एक्सप्लोरेशन करना होता है तो हम EFA रन करते हैं, और अगर हमें कंफर्मेशन करना होता है तो हम CFA रन करते हैं. तो यहां पर तो हम ऑलरेडी हमारे फैक्टर्स क्लियर है, फैक्टर्स पता है, तो हम CFA करने चले कि EFA रन करें पहले? सर दोनों भी रन कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि CFA में क्या हमें फैक्टर्स कम देखने को मिलते हैं सिग्निफिकेंट कंपेयर टू EFA. तो पहले EFA तो देख ले. हाँ जी, EFA मैंने वही बोला, दोनों कर सकते हाँ, हैं. पहले हम EFA करेंगे. उसके 2 बड़े कारण हैं, मैं आपको बता देता हूं. फर्स्ट, आफ्टर डूइंग CFA वी नीड टू कंपेयर द रिजल्ट ऑफ CFA विथ EFA. हम पहले तो ये भी काम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप ये पॉइंट समझ सको कि CFA की वैल्यूज में किस लेवल का चेंज आता है. तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले EFA को रन करें. वो फर्स्ट पॉइंट है. प्लस नेकेड आई से जो दिख रहा है वो सिर्फ डाटा दिख रहा है. नेकेड आई से जो आपको दिख रहा है सिर्फ आपके वेरिएबल्स के नाम दिख रहे हैं और आपका डाटा दिख रहा है. मुझे नहीं पता, हो सकता है कि एटीट्यूड का कोई एक वेरिएबल वो जाकर BI पे लोड हो जाए, BI का कोई वेरिएबल जाके PU पे लोड हो जाए. हो सकता है या नहीं हो सकता? पॉसिबिलिटी है या नहीं है? तो उस चीज को चेक करने के लिए, और मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था, इफ देयर विल बी अ क्रॉस लोडिंग, अगर क्रॉस लोडिंग आती है EFA में तो वो CFA को खराब कर देगी. CFA रन ही नहीं करेगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, वैल्यूज बड़ी पुअर आएंगी. तो लगाते हैं एक बार EFA. लेट्स गो टू एनालाइज, डायमेंशन रिडक्शन, फैक्टर एनालिसिस. सारे के सारे वेरिएबल को उधर डाल देते हैं. अब सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि हमारा डाटा फिट है या नहीं. एब्स्ट्रैक्शन में आइगन वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. स्क्री प्लॉट ले लेते हैं अगर लेने का मन है तो.
रोटेशन में विल चूज वेरी मैक्स, हमें इंडिपेंडेंट फैक्टर्स बनाने। ऑप्शंस में विल गो सॉर्ट कर देते हैं इसको और सप्रेस कर देते हैं ऑल द वैल्यूज विच आर बिलो 0.5। यहां पर मैं 0.5 क्यों ले रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं? What is the logic behind this 0.5? Because these values are not significant, so these can be ignored. 0.5 क्या है? What is 0.5? So it is correlation. हाँ, it is the value of that correlation. मैंने आपको कहा था ना इंटर कोरिलेशन की वैल्यूज हाई होनी चाहिए। तो अगर 0.5 से बिलो आ रही है तो इसका मतलब उतनी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए सप्रेस कर रहा हूं उनको। लेट्स गो टू ओके। अब चेक कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ KMO इज गुड, 0.719 आ रहा है, 0.7 से ऊपर है। बार्लेट भी अच्छा है, सिग्निफिकेंट है, कोई इशू नहीं। टोटल वेरिएंस देखते हैं कितने बन रहे हैं। पहले तो देखते हैं हमारे 4 फैक्टर बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे। तो 4 फैक्टर क्लियर है। पहला फैक्टर 3.1, दूसरा 2.5, अगला 1.5, अगला 1.4। दीज आर माय आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यू से हमें 1 से ऊपर वाले फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है। अगर इसके वेरिएंस को देखें, सबसे पहला जो वेरिएंस हमें निकल कर आ रहा है फर्स्ट, दैट इज 17, 16, 15, 12। तो ऑलमोस्ट वेरिएंस एक जैसा है सभी फैक्टर्स का। और जो टोटल वेरिएंस हमारे सामने आ रहा है दैट इज 62%। तो दैट इज ऑल्सो नॉट बैड। 60% प्लस इज गुड, नॉट बैड। स्क्री प्लॉट में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें एल्बो से ऊपर ऊपर देखना होता है। तो ये एल्बो का जो ये वाला 1 की वैल्यू है, इससे ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो 4 फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन जगह पर। ये है हमारा कंपोनेंट मैट्रिक्स। अब यहां पर आप देख सकते हो कि फैक्टर 1 में 4 वेरिएबल लोड हो रहे हैं, और वो चारों वेरिएबल कौन से कंस्ट्रक्ट के हैं? Perceived ease of usefulness. परसीव्ड और ईज ऑफ यूज के। सेकंड फैक्टर पे PU लोड हो रहा है, उसके भी चारों वेरिएबल लोड हो रहे हैं। थर्ड पे एटीट्यूड एंड फोर्थ पे बिहेवियरल इंटेंशन। और सब क्लीन है, बिल्कुल क्लीन है, कहीं कोई क्रॉस लोडिंग नहीं दिख रही। ये क्लीन चाहिए, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। अगर आप मॉडल बनाना चाहते हैं तो हमें ये टेबल एकदम क्लीन चाहिए। अगर ये टेबल क्लीन नहीं आ रहा, मॉडल नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है। और इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। या तो यू हैव टेकन रिडंडेंट स्टेटमेंट्स, और द रिस्पॉन्सेस आर वेरी रिडंडेंट इन नेचर। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस तरह से रिप्लाई करते हैं 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3। तो जब इस तरह के रिस्पॉन्सेस आएंगे तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी। तभी मैंने आपसे कहा डाटा क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जहाँ पे हमने, आई हैव अ क्वेश्चन, जहाँ पे हमने सप्रेस किया है कोरिलेशन 0.50, अगर मान लो वो हम नहीं करते, तो क्या हमें क्रॉस लोडिंग्स देखने को मिलेंगी यहाँ पे? नहीं, अभी तो यहाँ पे तो नहीं आएगी तब भी। ओके ओके, उसका रीजन क्या, आप देखो ना, कोई भी वैल्यू 0.5 के नीचे है ही नहीं। ठीक है। वो तब इशू क्रिएट करता है जब कोई वैल्यू 0.5 के नीचे आ रही हो, तो इशू आएगा। अब ये वाली जो फाइल मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये तो क्लीन्ड फाइल है। ठीक है, अब इसकी मैं ना आपको इनिशियल फाइल दिखाता हूं, जो इसकी रॉ फाइल थी। आई होप कि मेरे पास वो फाइल हो। एक मिनट रुको, होनी तो चाहिए यार। लेट मी शो दैट फाइल। फिर आप मेरा कंसर्न समझ जाओगे और ये कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आप वो भी समझ जाओगे। यहां मिल जाएगी। ये रहा, ये इसकी ओरिजिनल फाइल थी जहां से मैंने इसको क्लीन किया है। तो जरा आप देखो, इसको मैं लगा के दिखाता हूं आपको अब। बिट में रन डायमेंशन रिडक्शन फैक्टर, सारे वेरिएबल्स में और भी ज्यादा वेरिएबल थे।
तो मैं 1 मिनट के लिए फिर भी सारा रन कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि इसमें मैटर ऑफ कंसर्न क्या बन जाता है, और जो हर स्टूडेंट फेस करेगा ही करेगा, जिसके 90% चांसेस है। ओके, सो रोटेशन में कर देते हैं वेरी मैक्स, ऑप्शंस में सप्रेस कर देते हैं, और वैल्यू को भी 0.5 से नीचे कर देते हैं। आई एम जस्ट रनिंग द सेम एनालिसिस ऑन द ओरिजिनल फाइल, इसको जो क्लीन्ड फाइल नहीं था, रॉ डाटा था। अब इसको मैंने रन कर दिया है, ये तो ठीक आ रहा है, केमो वेमो ठीक है, फैक्टर्स देखो बहुत सारे बन रहे हैं, 9 फैक्टर बन रहे हैं। अब आप 9 को छोड़ो और यहां देखो, ये देखो रोटेटेड में, 1 मिनट रुको, इसका मैं जरा नाम चेंज करूं पहले, तब आपको समझ में आएगा। लुक एट दिस, PEOU क्लीन है, BI क्लीन है, HB क्लीन है, क्लीन था ये भी, मेजॉरिटी यहाँ पर भी क्लीन है, इतना कोई मेजर कंसर्न यहाँ पर भी नहीं है। कुछ एक एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं, बट कल एक फाइल में और देख रहा था किसी की, उसमें बहुत इश्यूज आ रहे थे, क्रॉस लोडिंग का इशू रहता है। क्रॉस लोडिंग क्या होती है, मैं एक बार यहीं पर आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है कि जो PEOU है ना, ये यहाँ नहीं लोड होकर यहाँ लोड हो जाएगा फैक्टर 4 पे, जहां पर कि ये परसीव्ड एंजॉयमेंट लोड हो रहा है। तो इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, और वो क्रॉस लोडिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जो हमने कल भी पहले भी बात की थी। और X7 के केस में हमने ऑलरेडी क्रॉस लोडिंग देखी हुई है कि किस तरह से वो दोनों जगह लोड हो गया था। तो बेस्ड ऑन दिस हमने जो फैक्टर एनालिसिस हमने निकाला है अपना, एक बारी के लिए फिर से रन कर देते हैं उसको। इसमें कोई इशू है तो, डाउट है तो बताएं प्लीज। ये हमारा टेबल आ गया। Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, if there is a problem of cross loading, how to correct it? मैंने आपको बताया ना उसके क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण, either the statements are very redundant, either the responses are very redundant। यही 2 मेजर रीजन होते हैं जिसकी वजह से क्रॉस लोडिंग आ रही होती है। But sir, if we have used standardized scale, हाँ जी, क्या कह रहे हो? अगर हमने standardized scale use किया है सर, उसमें तब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। स्टैंडर्डाइज स्केल आप यूज भी कर रहे हो तो उसके आइटम्स तो ठीक होंगे, बट वहां रिस्पॉन्सेस का इशू होगा। ओके, क्योंकि डाटा तो आप Thank फ्रेश you. ले रहे हो ना। हाँ जी सर। तो जब डाटा आप फ्रेश ले रहे हो तो आप ये समझ के चलो कि वो एक कंसर्न बन जाएगा। So if the responses are redundant, then how do we correct that? वो देखना पड़ेगा आपको। Okay. रिडंडेंट रिस्पॉन्सेज में डुप्लीकेट वैल्यूज आप चेक कर सकते हो एक्सेल में जाकर कि डुप्लीकेट वैल्यूज कितनी आ रही हैं किसी पर्टिकुलर रो में। प्लस आप ना, मैं हमेशा जब भी क्वेश्चनर बनाता हूँ या स्टेटमेंट्स बनाता हूँ, तो मैंने काफी बार अपने वर्कशॉप में पहले भी ये बात कही है कि मैं हमेशा उसमें कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट जरूर डालता हूँ। उसका ये फायदा होता है कि मुझे क्रॉस चेक करने में आसानी होती है कि किसी ने रिस्पॉन्स सही किया है या नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक टाइम पे कह रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स की बहुत वैल्यू करता हूँ, किसी एक स्टेटमेंट पे किसी ने रिप्लाई किया है कि वो अपने पेरेंट्स की बहुत वैल्यू करता है, लेकिन अगला स्टेटमेंट ये है कि आप अपनी पेरेंट्स को साल में कितनी बार मिलने आते हो, और वहां पर उसका स्कोर बहुत पुअर है। तो देयर मस्ट बी सर्टेन क्वेश्चंस इन योर सर्वे व्हिच क्रॉस चेक्स द रिस्पोंडेंट्स व्यू। Okay, sir. क्योंकि अगर कोई किसी एक स्टेटमेंट पे पॉजिटिव बात कर रहा है, मतलब अगर कोई ये कह रहा है कि भाई मुझे ये टेक्नोलॉजी यूजफुल लगती है, तो उसके बाकी स्टेटमेंट्स का भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही होना चाहिए ना। एक टाइम पे आप कह रहे हो टीचर बहुत अच्छा है, दूसरी जगह आप कह देते हो टीचर बहुत बायस्ड है, तो ये कैसे लॉजिकल है आप बताओ? Sir, योर if you स्टेटमेंट, हाँ जी,
सर स्टेटमेंट के जो स्ट्रॉन्गली, अगर हम 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे लें, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री टू स्ट्रॉन्गली अग्री, तो वो तो सब स्टेटमेंट्स में सेम ही रहेगा ना, 1 to 5 जैसे सेम स्ट्रॉन्गली। रहेगा ना, बट डायरेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट तो सेम होगा ना हर पर्सन का। आप समझो यस बात को सर, मैं क्या कह रहा हूँ। यस सर, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे कोई टीचर अच्छा लगता है, लेट सपोज मैंने ये रिप्लाई देना है, और मैं कह रहा हूँ कि नॉलेज के लिए मैंने 4 स्टेटमेंट बनाई है, मैं 2 स्टेटमेंट पे कह रहा हूँ इसको बहुत अच्छी नॉलेज है और बाकी के 2 पे मैं उसको नीचे स्कोर कर दूं, तो कैसे बैलेंस आपका निकल कर आया, आप खुद सोचो। यस सर, रिस्पॉन्सेज हैज टू गो इन द सेम डायरेक्शन। अगर कोई आदमी कह रहा है कि निगेटिव हूं मैं, गलत हूं, मतलब मुझे नहीं लगता ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो वो सब पे निगेटिव देगा ना। ऐसा थोड़ी होगा किसी पे बहुत पॉजिटिव दे रहा है, किसी पे बहुत निगेटिव दे रहा है, तो उसका मतलब उसने एक्चुअली में क्वेश्चंस पढ़े ही नहीं है। यस सर। So, sir, we should remove such responses then? डिलीट। Yes, sir. और इसी वजह से जब मैं डाटा को कलेक्ट कर रहा होता हूं, मैं पर्सनली क्या करता हूं मैं वो बता देता हूं आपको। मैं हमेशा डाटा को 50-60 के बैचेस में कलेक्ट करता हूं। तो 50-60 के बैचेस में जब डाटा मेरे सामने आ रहा होता है तो मैं उनको क्रॉस वेरीफाई कर पाता हूं। मैं चेक कर पाता हूं कि डाटा कैसा जा रहा है, उसके रिस्पॉन्सेस कैसे आ रहे हैं। तभी मैंने आपसे कहा कि क्लीनिंग एक बहुत बड़ी गेम है। डाटा क्लीनिंग पर स्टूडेंट फोकस नहीं करता, ना देखता है डाटा को, उसको लगता है मेरा जो रिक्वायर्ड सैंपल है बस वो पूरा हो जाए। उसके चक्कर में सारा कूड़ा उठा के ले आता है कहीं से भी, और तब फिर सॉफ्टवेयर क्या करता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपने गार्बेज डाला है तो गार्बेज रिजल्ट आपको मिलेगा, सिंपल। इज दिस पार्ट इज क्लियर? ये वाला पार्ट क्लियर हो गया आपको? क्लियर है? ईएफए हमने निकाल लिया है इस पर्टिकुलर फाइल पे। आगे बढ़े। सर, अगर एक रिस्पोंडेंट के 1-2 वैल्यूज मिसिंग है तो वो पूरा रिस्पॉन्स हमें डिलीट करना? नहीं नहीं, उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं, आप उसको मीन वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हो। आप इंप्यूटेशन का प्रोसेस देख लो। ठीक है सर। मिसिंग वैल्यू के इंप्यूटेशंस होती हैं, उसके मेथड्स होते हैं, आप उसको देख सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, चलिए फिर अब वापस चलते हैं मॉस में और सीएफए लगाते हैं। अब सीएफए लगाने के लिए हमें पता है कि हमारे 4 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो चलिए फिर बनाते हैं 4 फैक्टर। लेट मी जस्ट पिक अ फाइल। Okay, so this is my blank sheet. Let's draw my 4 factors first. तो ये मेरा पहला फैक्टर बन गया। 4 स्टेटमेंट्स थे इसके, इसको रोटेट करा देते हैं। Let's draw the next one. ये मेरा दूसरा बन गया, इसके भी 4 थे। Now let's rotate this also. और इसको हम आगे बाद में मूव करा लेंगे। Let's move on। जो नेक्स्ट हमारा था, अभी के लिए एक बार पहले बना लेते हैं जल्दी जल्दी ना। 1 2 3 and another one was another one here। 1 2 3। तो ये हमारे 4 थे, मैंने चारों यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। अब इसको एक बारी के लिए ऑर्डर में लगा देते हैं। So I'm just selecting it। एक एक करके मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मूव करूंगा एक्चुअली में, सो दैट कि वो एक सिंक में आ जाए। आप साथ साथ में बना सकते हो मेरे। ये देखो, अब इस वाले को मैं रोटेट करता हूँ पहले, इस वाले को भी। Now I'll move that also। पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। उसको तो अनसेलेक्ट किया ही था। So now move।
And the last one is this one. So let me draw this also. And move. ओके तो ये मेरे चार जो मेरे कंस्ट्रक्ट थे वो चारों मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। ठीक है, आई जस्ट रीनेम नाउ, मैं इनके नाम्स रख दूं। माय फर्स्ट वन वाज PEOU। कहीं पर डाउट आएगा तो प्लीज पूछेंगे, अभी तो वैसे कुछ मैंने ज्यादा किया ही नहीं है, बस मैं ड्रॉ ही कर रहा हूँ जो कल हमने किया था वैसे ही। दिस इज PU। This is attitude. And this is BI. ठीक है, सारे अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स का नाम रख लेते हैं। But before that we need to load the file first. पहले फाइल को लोड करते हैं, रुको। So my फाइल को हम यहां से जाके select data file में we'll upload the file, double click on this, और जहां पर भी हमारी फाइल पड़ी हुई है I'll just upload। यहाँ पे आप देख सकते हो 240 by 5 by 245, that means the file has been loaded। जैसे ही यहाँ पे सैंपल साइज आने लगेगा आपको समझ लो फाइल लोड हो गई है। तो I'll just click on OK। मेरी फाइल अब यहाँ पे लोड हो चुकी है। अब मुझे जितने भी यहाँ पर देखो आप सारे लिस्ट ऑफ वेरिएबल भी देख पाओगे। ये देखो आप जो जो आपके फाइल में वेरिएबल है वो सब यहाँ नजर आ रहा है। अब मैं यहाँ से एक एक करके ड्रैग करूंगा और ड्रैग करके उसको इंडिकेटर वेरिएबल पे लोड करूंगा। तो PEOU will go to PEOU1, ये देखो लोड हो गया। OU2, OU3, OU4। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछे। इज इट क्लियर? सर डाटा डालने कैसे, एक बार वो रिपीट कर ये दें। देखो यहाँ पे था ना सिलेक्ट फाइल, ये देखो ये वाला ऑप्शन। हाँ जी सर। सिलेक्ट डाटा फाइल पे बस क्लिक करो और यहाँ पे ग्रुप नंबर पे डबल क्लिक करो, फिर जो फाइल है उसको अपलोड कर दो। क्लियर है? यस सर। अब ये जो मेरी फाइल्स है इनको मैं यहाँ पर जो जो मेरे इंडिकेटर वेरिएबल है उसको मैं डालता जाऊंगा। BI1 है तो BI1 में डाल देते हैं। ओहो एक मिनट, select all। तो BI1 will go to BI1, BI2 will go to BI2, BI3 will go to BI3, attitude 1 will go to attitude 1, attitude 2 will go to attitude 2, attitude 3 will go to attitude 3, PU1 will go to PU1, PU2, PU3, PU4। एक मिनट, यहाँ PU4 आ गया नहीं, PU3 आया है, इसको PU4 कर देते हैं। ओके, अब मेरे जो एरर वाले वैल्यूज हैं जितने भी, ये देखो उसका नाम नहीं किया हुआ है, तो प्लगइन्स में जाके I'll just name unobserved variables। तो ये देखो मेरे सारे वैल्यूज आ गए उसके भी। अब एक चीज यहाँ पे रह गई है, दैट इज कॉल्ड कोवेरियंसेस। हमें कोवेरियंसेस को भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कोवेरियंस को ड्रॉ करने का एक शॉर्टकट सिखाता हूं आपको। अब बस जो आपके लेटेंट कंस्ट्रक्ट है ना उनको सिलेक्ट कर लो। ये देखो 1 2 3 4, ध्यान से देखेंगे ये वाला स्टेप, अदरवाइज नहीं तो आपको मैनुअली ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो मैनुअली ड्रॉ करने से बचने के लिए, प्लस में कई बार क्या होता है ना, ड्रॉ करने में आप कोई ना कोई पाथ भूल जाओगे, आपसे ड्रॉ ही नहीं होगा।
क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? सर कैन यू प्लीज रिपीट? क्या रिपीट करना है बताओ? मैंने बस ये इसको सिलेक्ट किया है, नथिंग एल्स। ओके ओके जो आपके लेटेंट कंस्ट्रक्ट्स है ना, उनको मैंने सिलेक्ट किया और मैंने कुछ भी नहीं किया अभी। ओके सर। सर आप अब आप कोवेरिएंस, कोवेरियंस को ड्रॉ करने के लिए हाँ जी, अब आप प्लगइन्स में जाओगे तो यहां देखो ड्रॉ कोवेरियंसेस का ऑप्शन आ रहा है। जस्ट क्लिक ऑन ड्रॉ कोवेरियंस। आप देखो सारे कोवेरियंस बन जाएंगे आपके। अब थोड़ा सा को टचअप कर देते हैं। टचअप टचअप टचअप। ठीक है, तो ये जो अब हमने बना दिया है, दिस इज कॉल्ड CFA। ये CFA का मॉडल है जो आपने बना दिया है, जिसको हम मेजरमेंट मॉडल भी कहते हैं। मैं दोबारा आपको सारे स्टेप्स बता देता हूं। सबसे पहले हमने SPSS पे जाके फ्रीक्वेंसी एनालिसिस रन किया। जब वो एक बार हमारा रन हो गया, हमें पता चल गया देयर आर नो मिसिंग वैल्यूज। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो हमने EFA किया। EFA करने के दो मेन पर्पस थे। फर्स्ट, हम क्रॉस लोडिंग्स देखना चाहते थे कि क्रॉस लोडिंग तो नहीं आ रहा। सेकंड, हम ये इंश्योर करना चाहते थे कि जो हमारा डाटा है वो कंप्लीटली फिट है या नहीं है, वो भी देखना इंपॉर्टेंट था उस पार्ट में। तो एक बारी जब वो हमारा क्लैरिटी मिल गया, हमें हमारे वो सारे डाउट्स दूर हो गए, देन वी नीड टू डू द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज कॉल्ड CFA। तो CFA में आकर मैंने क्या किया, सबसे पहले जितने मेरे वेरिएबल्स थे वहां पे, जितने फैक्टर्स थे, उन सबको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और उनसे रिलेटेड इंडिकेटर वेरिएबल भी ड्रॉ किए, एरर वेरिएबल भी ड्रॉ किया और कोवेरियंसेस ड्रॉ किए, उनका नेमिंग किया और उनको लोड किया, फाइल से लोड किया। यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ वेरिएबल थी उससे ड्रैग कर करके मैंने इंडिकेटर वेरिएबल को लोड किया। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट क्या करता है, वो नेमिंग कर देता है। नेमिंग नहीं करना है, लोड करना है। ऐसा नहीं कि बस जा। हाँ जी, I'm still facing problems in data entry. I mean, डाटा एंट्री इन द सेंस कहाँ पे? जहाँ पे हमने डाटा एंटर करा ना, इसमें जहाँ से हमने ऑब्जर्व वाले हाँ। वेरिएबल्स में, वो मेरा लिस्ट में नहीं कर पा रही अभी भी स्टेप। ये देखो, सिलेक्ट फाइल में गया और डबल क्लिक करके फाइल अपलोड कर दी। अब हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन की एनालाइज प्रॉपर्टीज में जाके हमें आउटपुट में क्या क्या चीजें चाहिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो विल गो टू एनालाइज प्रॉपर्टीज और यहां पर देखो आपके पास आउटपुट का ऑप्शन आता है। ये देखो आउटपुट। तो आउटपुट में आपको एक तो स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट्स चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक हमें चाहिए मॉडिफिकेशन इंडिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिडुअल मोमेंट्स आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, बट ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडिफिकेशन इंडिसेस एंड स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट्स। इन दो जगहों पे टिक कर देंगे आप। अब हम इसको रन करने जा रहे हैं। So we'll click on calculate estimates। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, अगर सब कुछ सही है तो ये रन कर जाएगा। अगर कोई इशू हुआ तो पता चल ही जाएगा अभी 2 मिनट में। यहां तक अब मैं, अगर आपको अभी कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ ले। मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए कि क्या करना है हमें। सर एनालाइज में एक बार रिपीट कर दीजिए, आपने क्या एनालाइज बताया? प्रॉपर्टीज में गो टू एनालाइज प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आउटपुट का टैब आता है। आउटपुट के टैब में यू नीड 2 थिंग्स, स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट्स एंड मॉडिफिकेशन इंडिसेस। ये दो चीजें हमें चाहिए अभी के लिए।
मिनिमाइजेशन हिस्ट्री नहीं चाहिए। अभी कुछ भी और नहीं चाहिए हमें, बस इन दोनों से हमारा काम बन जाएगा। ओके। क्लियर? तो लेट्स यस। रन इट। रन करते हैं। रन करने से पहले ये कहेगा फाइल का नाम रखिए, तो रख देते हैं भाई फाइल का नाम। पिछली में रखते हैं यार कुछ टैम वर्कशॉप। ये मेरी फाइल सेव हो गई और ये रन हो गया। अब आप देखोगे जब आपने रन किया तो एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन तब भी मैंने आपको कहा कि ये रन हो गया है। क्यों रन हो गया है? आप यहाँ पे देखो, ये वाले ऊपर में ऑप्शन में आओ। यहाँ पर पहले क्या था, ये वाली चीज एक्टिवेटेड नहीं थी, सिर्फ एक साइड एक्टिवेटेड था। अब आपका ये वाला एक्टिवेट हो गया, आप इस पे क्लिक करो। अब देखो आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे, और इस पे क्लिक करके स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट्स देखना है, अनस्टैंडर्डाइज नहीं। तो ये आपका स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट आ गया। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, ये देखिए। सर एनालाइज से फिर से रिपीट कर देंगे प्लीज। एनालाइज आउटपुट में जाके, पहले मैंने आपको बताया क्या करना है। आउटपुट में जाके दो ऑप्शन टिक करने थे, स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट्स एंड मॉडिफिकेशन इंडिसेस। इसको करने के बाद बस कैलकुलेट एस्टिमेट्स का यहाँ ऑप्शन था, कैलकुलेट एस्टिमेट पे मैंने क्लिक किया और रन कर दिया। जैसे ही मैंने रन किया, यहाँ पर पहले सिर्फ एक साइड, ये वाला साइड जो था वो हाईलाइटेड नहीं था। अब आप देखोगे ये वाला साइड भी हाईलाइटेड हो गया। ये वाला आपका मॉडल है, ये आपका एग्जीक्यूशन है। ये मॉडल है, ये एग्जीक्यूशन है। और इसमें हमारे पास अनस्टैंडर्डाइज भी आते हैं, स्टैंडर्डाइज भी आते हैं। अनस्टैंडर्डाइज मतलब विदाउट यूनिट, स्टैंडर्डाइज मतलब विथ यूनिट। तो हमें स्टैंडर्डाइज देखना है विथ यूनिट। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट? सर आपने टाइटल कहाँ पर दिया था? टाइटल? कौन सा टाइटल? सर आप अभी कहते टाइटल करना पड़ेगा इसको। नहीं, मैंने तो कुछ भी टाइटल नहीं किया। क्या टाइटल किया? मैंने तो बस फाइल्स को ड्रैग किया था। मैंने आपको बताया था ना, ड्रैग करके डाल रहा हूँ इंडिकेटर वेरिएबल को। नेमिंग नहीं करनी। नेमिंग आप इसकी कर सकते हो, लेटेंट की कर दो नेमिंग, लेकिन आप जो इंडिकेटर वेरिएबल है उसको आप ड्रैग करोगे। रिजल्ट्स इंटरप्रेट करें तो सबसे पहले ये जो वैल्यूज आ रही है यहाँ, आप दिख रहा है आपको 0.68, 0.64, 0.76, 0.65, ये एक्चुअली फैक्टर लोडिंग्स है। अब हम वेरीफाई करेंगे कि जो ईएफए की लोडिंग्स आ रही थी और जो सीएफए की लोडिंग्स आ रही है वो कैसी आ रही है, क्या सेम आ रही है, क्या डिफरेंट आ रही है। देखें जरा क्या हुआ है। ये देखो, मैं दोनों फाइल आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप पैरेलली कंपेयर कर पाओ। ये देखो, पीओयू में आपकी यहाँ की वैल्यूज देखो, 0.804, 0.791, 0.757, 0.699, सभी वैल्यूज 0.7 से ऊपर ऊपर थी, और एक आध वैल्यू तो 0.8 के ऊपर है। बट अब यहाँ देखो, 0.64, 0.68, 0.65, 0.76, सारी वैल्यूज कम हो गई है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखो, पीयू में
दो वैल्यू ऐसी है जो 0.58 0.54 आई है, जो मतलब ऑलमोस्ट 0.5 के आसपास आ गई। यहां पर कोई भी वैल्यू 0.5 के आसपास नहीं थी। यहां पर अच्छा आ रहा था, काफी अच्छा आ रहा था, इनफैक्ट 0.7 से काफी ऊपर आ रहा था। बट अगर आप ध्यान से देखो, नीचे देखो, ये वाला BI में देखो 0.52 0.54, जबकि BI की यहाँ की वैल्यूज देखो 0.82 0.71, यहाँ पे काफी अच्छी थी। यहाँ पर देखो आप काफी कम हो गई। यही पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था। अभी तो फिर भी इतनी कम नहीं हुई कि हम कंसिडर ना कर पाए, लेकिन वैल्यूज कम हो जाती हैं। और अगर यहां ही पर 0.5 आ रही है ना, तो यहां गायब ही हो जाएंगी। अच्छा, कोवेरियंसेस की वैल्यू भी आप देख सकते हो। क्या बहुत ज्यादा कोवेरियंस तो नहीं आ रहा ना, सभी जगह तो नेगेटिव आ रहा है। एक जगह पे 0.37 है BI और PIU में, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, कोवेरियंसेस की वैल्यूज भी ठीक है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अभी इसमें हमें और वैल्यूज भी देखनी है, बट पहले हम उससे पहले उन वैल्यूज को पढ़ेंगे कि वो वैल्यूज होती क्या है। उसके बाद हम दोबारा आएंगे इस फाइल पे अगले सेशन में। अभी के लिए जो मैंने आपको समझाया वो क्लियर हो गया। वी हैव ड्रॉन CFA मॉडल, मेजरमेंट मॉडल आपके सामने बना पड़ा है, उसकी फैक्टर लोडिंग्स आपके सामने है, कोवेरियंसेस की वैल्यूज आपके सामने है। मैंने आपको दिखा भी दिया कि हाउ इट इज रिजिड देन, मोर स्ट्रिक्टर देन, रिजिड से भी ज्यादा मोर स्ट्रिक्टर देन EFA। इस पॉइंट तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछें। Is it clear? It's clear, sir. अभी हमें इसमें अपने काई स्क्वायर की वैल्यू, मॉडिफिकेशन इंडिसेस की वैल्यू, एस्टिमेट्स की वैल्यू, वो सब हमें चेक करना अभी बाकी है। वी हैव जस्ट चेक द फैक्टर लोडिंग्स राइट नाउ, क्योंकि मैं आपको पहले वो मॉडिफिकेशन इंडिसेस होते क्या है पहले वो पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम दोबारा इस फाइल पर आएंगे। तो सर इसमें फैक्टर लोडिंग्स की वैल्यूज इतनी डिफरेंट क्यों आ रही है? लाइक मैंने आपको अगर पहले हम कहा वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने काफी स्ट्रिक्ट हो जाता है कंफर्मेटरी एज कंपेयर टू एक्सप्लोरेटरी। तो सर the way it calculates factor loadings, is it like very different from how it is calculated in EFA? Okay, okay. ठीक है सर। प्लस आप ये देखो ना, इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो हमें समझनी चाहिए। जब आप EFA को रन कर रहे थे, आपने कोई फैक्टर्स का कोवेरियंसेस थोड़ी देखा था, राइट ठीक है। सर। प्लस हाँ आपने जी, क्या एरर कैलकुलेट किया था? आपने नहीं किया था ना। हाँ जी सर। ये सारे पॉइंट्स वहां पर नहीं थे। यहाँ हम एरर भी कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कोवेरियंसेस को भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस विल गिव यू अ मोर स्ट्रिक्ट एंड बेटर रिजल्ट एज कंपेयर टू EFA। राइट सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट कि CFA होता क्या है? CFA हमें पहले बनाना है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अगर एक सिंपल प्रोसेस बताऊं, पहले EFA, फिर CFA, फिर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल। हमें 3 स्टेप में रन करना है इसको। तो EFA हमने रन कर दिया, CFA हम रन कर रहे हैं, आपके सामने रन कर दिया है। अब इसके बाद हम स्ट्रक्चरल की तरफ बढ़ेंगे। पहले ये दोनों स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर अब इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर आप ये मॉडल आप ले लो, अब इसका CFA क्लीन नहीं है, CFA अच्छा नहीं आ रहा, और आप जाकर आगे मॉडल बना दोगे तो मॉडल पुअर आएगा, सिंपल। और काफी लोग ऐसा करते हैं, वो पीछे के स्टेप्स नहीं करते और सीधा जाकर के मॉडल रन कर देते हैं। तो अगर आपने मॉडल डायरेक्टली रन कर दिया तो फिर जो आएगा वो आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास।
यहाँ पर अभी मेरे पास चॉइस है, यहाँ पर मैं अभी देख सकता हूँ मैं अपने मॉडल की वैल्यूज और कैसे अच्छा बना सकता हूँ, उसके भी ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिख सकते हैं, जो भी हम सीखेंगे अगले सेशन में। अब मेरे 3 क्वेश्चन है, वो तीनों क्वेश्चन के आप जवाब दे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप मॉडल ड्रॉ करने में क्लैरिटी आ गई है, आपको समझ आ गया है लेटेंट क्या है, ऑब्जर्व्ड क्या है, कैसे हम बना रहे हैं उसको, यहाँ पे क्लैरिटी है। Yes, sir. ओके और जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है दैट इज, फाइल्स को कैसे लोड करना है वो आपने देख लिया, वेरिएबल को मैं कैसे लोड कर रहा था इंडिकेटर्स को वो, और प्लस फाइल को कैसे लोड करना है वो, आप दोनों चीजें क्लियर है। लिस्ट से जाके कॉपी करने वाला, कॉपी नहीं करना था, ड्रैग करना था मैं, ड्रैग करना था, ड्रैग। हाँ ये लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स आ रहे हैं ना, ये लिस्ट ऑफ वेरिएबल वही वेरिएबल्स हैं जो आपके फाइल में होंगे, तो आप फाइल में अगर वहां पे आपने नेमिंग कर रखी होगी तो वो यहाँ पर आएंगे, अगर नहीं की होगी तो फिर यहाँ पर नहीं आएंगे। इसीलिए मैंने इसीलिए इसका नाम भी मैं उसी हिसाब से रखता हूँ जिस हिसाब से मैं इसको कंस्ट्रक्ट पे लोड करना होता है, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है मेरे लिए। इसका आइकन सर एक बार फिर से एरो दिखा दीजिए मेरे को। ये रहा मैम, थर्ड रो में, ये थर्ड वाली फाइल, थर्ड लास्ट ऑप्शन है थर्ड रो में। ठीक है जी जी, थैंक यू। ठीक है, और उसके बाद आपको फाइल लोड करने के बाद यू गो टू एनालाइज प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर आउटपुट में 2 चीजें हमें चाहिए, ये दोनों चीजें मैंने अभी तक आपको दिखाई नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट्स आपने देखा है अभी मॉडिफिकेशन इंडिसेस वगैरह सब देखना बाकी है हमारा, कि ओवरऑल ये मॉडल अभी कैसा फिट हो रहा है ये हमें नहीं पता, क्योंकि अभी तो सिर्फ आपने फैक्टर लोडिंग्स देखी है, अभी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ओवरऑल काई स्क्वायर की वैल्यू कैसी आ रही है, मॉडिफिकेशन इंडिसेस की वैल्यूज कैसी आ रही हैं, क्या इसमें कुछ ट्विकिंग हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सब अभी हम अगले सेशन में पकड़ेंगे। और उसके बाद हमें कैलकुलेट एस्टिमेट्स में जाकर स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट्स देखने। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इसको डिसर्टेशन पर्पस से सीख रहा है तो वो इसको यहां से इस फाइल को लेगा और इसको डायरेक्टली अपने थीसिस में डालेगा, मेजरमेंट मॉडल दिखाएगा कि मेजरमेंट मॉडल क्या आया था, और उसकी जो अभी वैल्यूज क्या क्या होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो वैल्यूज भी डालेगा, बट ये पूरा मॉडल यहां से चला जाएगा, मेजरमेंट मॉडल एज इट इज, यहां से आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर आप डाल सकते हो अपने वर्ड में। और इवन इफ यू आर राइटिंग फॉर द रिसर्च पेपर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, वैसे रिसर्च पेपर में मेजरमेंट मॉडल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, क्योंकि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि अगर स्ट्रक्चरल मॉडलिंग अच्छा आ रहा है, वैसे भी अगर आप खुद सोचो अगर स्ट्रक्चरल मॉडलिंग अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब मेजरमेंट मॉडल अच्छा होगा तभी स्ट्रक्चरल अच्छा है, ये एक स्टेप पीछे है वो एक स्टेप आगे, तो अगर वो मॉडल आपका सही बन गया, ये सही आ रहा है, इसका मतलब पीछे वाले सारे स्टेप्स मोटा मोटी ठीक होंगे। Excuse me, sir. I want to click few pictures along with your presentation. So I request all the participants kindly turn on your camera for few seconds, because yesterday also I couldn't click good pictures. Okay, ma'am. All of you, please turn on your camera. Aradhna ma'am, can you please turn on your camera? Kindly excuse me for today. I'm in a really bad shape. Okay. All of you who can are please requested. Acha, sir, you are stopped presenting now? No, it's presenting. Okay, Yeah. okay. So one picture I can take along with the presentation, another one will be a group picture only. Thank you, Snehil. Thank you, Ashwini sir. Yes, now sir, I can take without presentation, just a group Okay. picture. Let me just stop sharing it and I'll take the queries also. Yeah. Okay.
Manika, please turn on your camera. My Okay. camera is on. Okay, you have joined for 2 devices, no? Actually, okay, fine. I'll log. No, it's fine. It's fine. Yeah, thank you so much. Thank you. Sir, you may continue. Okay. So, any other queries from this session before we go for the break? And we'll come back. और अब हम वो वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे जो हमें चेक करनी होती हैं, उनके स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या होते हैं,